Sanjay, how are you? I'm fine, sir. And what about you, sir? I am fine, thanks for asking. Okay, so first of all, tell me something about yourself. Okay, sir. First of all, very good evening, sir. My name is Sanjay Kumar, and I am from Mahasamund, Chhattisgarh. I have completed my engineering from Rumta College of Engineering and Technology in 2020, and I have total 12 months of experience from Mahindra as a sales executive. And I'm a kind of person who loves to interact with people, and traveling is my hobby. And my strength are I keep positive thinking towards my career, and I'm hardworking, and also I can work under pressure. And I'm looking forward to work in edtech sales. So that's all about me. Thank you, sir. But Sanjay, why only Byju's? In EdTech also multiple Yes, companies sir. we have in market. Yes. So why only Yes, sir. Byju's? Sir, first of all, Byju's is a growing company, sir. And I always wanted to join a company which is growing. And nowadays, Byju's is a world largest edtech company. So I can see my future clearly in Byju's. So that's why I want to join Byju's, sir. Okay, okay. So Sanjay, tell me, what is Byju's? What do you know about Byju's? Sir, as I already told you, Byju's is the largest edtech company. Byju's has provided the platform for educational studies, educational background studies. And Byju's is started in 2011 by Ravindran Byju's and Divya Gokulnath. And recently, Byju's has acquired many startups and companies like Akash, GradUp, Whitehead Junior, Scholar, like that. Okay. So Sanjay, tell me some that's all feature of about that. Byju's application. Yes, कुछ sir. feature बताओ. Sir, it has a yes, sir. It has some unique features like parental app features and Quizo mode and visualization based feature, real life explanation, and also they have provided recorded class and live class. So that is the good feature of Byju's. ठीक है. Okay. Sanjay, tell me, what is your aspiration? Life में aim क्या है आपका? Sir, I want to become a good salesman. Salesman. Okay. Perfect. Yes, Okay. sir. So I am giving you a question. Okay. Try to Yes. convince me in that question. Okay. So suppose Okay, एक sir. बच्चा है class 4th का, ठीक है, and Okay. he is only believing in physical learning. वो physical study करता है. He don't go for online learning. वो कभी नहीं पढ़ता Okay. online application से या किसी भी ऐसे ऐप से. ठीक है. So you have to Okay. convince that child to study from online mode. Okay. But he is scoring Okay. good. उसके marks वगैरह अच्छे आते हैं. He scores 98% marks. So then you have to convince that child to go for online learning. कैसे convince Sir, करोगे? I have to play the role or only points रखना है मेरे को. नहीं आप मैं वो बच्चा हूँ मान लो आप मुझे convince करो. How will you Okay. convince me? Okay, sir. Okay. Go ahead. सर स्टार्ट कैसे करूँ वो समझ नहीं आ रहा है. मतलब ग्रीट करना Try है करो. या फिर नहीं आप simple आप मेरे पास आए और मैंने ये बोला आपको कि मेरा जो पढ़ाई का इंटरेस्ट है वो फिजिकल लर्निंग में है. मुझे ऐसा समझ में नहीं आता पढ़ाई ऑनलाइन लर्निंग वीडियो देख के पढ़ना मुझे समझ में नहीं आती ये सब चीजें और मेरा स्कोर अच्छा भी आता है इस ऐसे पढ़ाई करने से. तो मैं अपना क्यों पढ़ाई स्विच करूं ऑनलाइन लर्निंग में जब मेरे मार्क्स भी अच्छे आ रहे हैं सब कुछ अच्छा चल रहा है. मैं क्यों स्विच करूं ऑनलाइन लर्निंग में? ओके ओके. Yes, first of all, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल आस्क देम बेटा आप कौन सी क्लास में हो अभी? क्लास 5. ओके ओके. आप एक पर डे कितने आवर्स पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो? See, I study for 3-4 hours in a day. Oh, that's good. सबको अपनी पढ़ाई अच्छी से करनी चाहिए. अभी आपको कितने मार्क्स आ जा रहे हैं? I am scoring 90% marks. ओ कांग्रेचुलेशन. अभी से आप इतना अच्छा कर रहे हो. आपको पापा हेल्प करते हैं पढ़ाई में या आप कोई अलग से ट्यूशन लगाए हैं? No, I do myself. कोई ट्यूशंस नहीं है, मैं खुद से पढ़ाई करता हूँ. Like I love studying. मेरा पढ़ना मेरा पैशन है. ओके 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 ओके. तो आगे चल के कुछ बनना चाहते हैं आप? कुछ ड्रीम्स वगैरह होंगे फ्यूचर्स में? अभी कुछ सोचा नहीं है सच, बट इंजीनियरिंग करनी है आगे जाके. इंजीनियरिंग करनी है तो जैसे कि आपको पता होगा इंजीनियरिंग के लिए आपको आईआईटी का एग्जाम देना पड़ता है, जेईई मेंस क्लियर करना पड़ता है. तो बेटा क्या आपको लगता है कि आप वो निकाल पाओगे अभी से? उस लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप? यस, मेरे मार्क्स जिस तरह से आ रहे हैं, सो आई थिंक मैं कर लूंगा. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. राइट नाउ आई एम डूइंग गुड. आई विल डू गुड इन फ्यूचर आल्सो. हो जाएगा. अच्छी बात है. कॉन्फिडेंस रहना चाहिए तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं. ठीक. लेकिन मैं बताना चाहूंगा आप अपने क्लास में टॉप कर रहे हैं. कितने ना कि स्कूल में कर रहे हैं,
इसके अलावा आपको सिटी में कितने सारे स्कूल्स होंगे, फिर स्टेट में कितने सारे स्कूल्स होंगे, तो वहाँ से हर स्कूल से, हर सिटी से कितने सारे टॉपर्स निकलेंगे। तो उसमें पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आप कहाँ उसमें स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे स्कूल्स हैं ना, इतने सारे बच्चे निकलेंगे, तब एट द एंड जब आपको एग्जाम देना रहेगा आईआईटी का, तो उस टाइम वहाँ कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हैं वो बहुत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे ना तो बाद में बहुत ज्यादा इशू हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं बोल बट यस। ठीक है, आपकी बात सही है, बट अभी के लिए मुझे लगता नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है पढ़ाई करने में ऑनलाइन वीडियो वगैरह से। क्या मैं जान सकता हूँ क्या कोई रीजन है आपको, मुझे कोई पसंद है कि दिक्कत है? मैं बुक से पढूं। मैं थोड़ा सा किताबी कीड़ा टाइप का हूँ। मुझे किताब से ही पढ़ना पसंद है, मुझे बुक से सटे हुए रहना अच्छा लगता है। सो ये मेरा अच्छा। पैशन है, बुक से पढ़ना। हम्म। तो क्या जब आप स्कूल जाते हैं तो खाली आप बुक से पढ़ते हैं, टीचर जो पढ़ाते हैं उसको भी समझते हैं? नहीं, समझते हैं, कोशिश उसको करते हैं समझने की, बट मैं सेल्फ स्टडी में ज्यादा बिलीव करता हूँ। आई डू सेल्फ स्टडीज मोर। ओके ओके ओके। बेटा आपने रामायण देखा है? हाँ, देखा है। स्टोरी सुनी है रामायण की, मतलब बुक्स में पढ़े है रामायण? नहीं, बुक्स पे नहीं पढ़ा है मैंने, तो टीवी में ही देखा है। टीवी में देखा है। कहीं भी कुछ कुछ सुना होगा रामायण के बारे में, कुछ तो पढ़ा होगा। पढ़ा तो नहीं है, वैसा कुछ करिकुलम में नहीं पढ़ा नहीं है मैंने, बट हाँ मैंने वो एक सीरियल था पहले, स्टार्टिंग में आता था नेशनल टीवी पर। मैंने वो सीरियल देख के ही पूरी स्टोरी देख ली वो रामायण की। आपको एकदम क्लियरली याद होगा हर एक चीज उसका, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर फील किया है। एम आई करेक्ट? यस। इसी तरह हमारा पढ़ाई भी होता है। अगर हम किसी चीज को अगर रियल लाइफ से फील करते हैं तो हमको वो चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, एंड उसका बेसिक से एडवांस तक हमको पता रहता है। दैट्स व्हाई ऑनलाइन इज बेटर, मोर बेटर देन ऑफलाइन। गुड इसके अप्रोच, लिए हमारा गुड, बैच। वेरी गुड, गुड। ओके, थैंक यू सर। गो एहेड, गो एहेड, बोलो। मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करना चाहूंगा कि हमारा बैचेस जो है इसी पे वर्क करते हैं। जो बच्चे वीक रहते हैं, लाइक अगर बच्चे को अभी से समझ नहीं रहा तो सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर उसका बेसिक से वीक है तो उसको सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बायजूस। यहाँ पर आपको क्विज़ो मोड मिलेंगे, जिसमें आप जिसमें आप अपने आप को समझ पाओगे कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कि ऑलमोस्ट आपको एट द एंड आपको आईआईटी फेस करना है। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं रहेंगे तो आप वहाँ पर सिलेक्ट कर जाओगे, कि अगर आपको कुछ भी चीज़ अगर 2 नंबर का अभी तो 2 नंबर का चीज़ समझ में बता। बैजेस बैजेस में बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं, लाइक क्विज़ो मोड, जिससे आपको पता चलेगा कि उसमें इंटरनेशनली नेशनली बच्चे कनेक्टेड रहते हैं, कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। जैसे कि जेई का जो एग्जाम होता है 3 आवर्स का रहता है, एंड अगर आप डेली उस हैबिट से अगर एग्जाम दोगे, उस क्वेश्चन को उसी पैटर्न में सॉल्व करने लग जाओगे, जब एट द एंड जब आप जेई का एग्जाम दोगे तो आपको वो एटलीस्ट मोर देन 2.5 आवर्स में इजीली कंप्लीट कर लोगे आप। तो कितना बड़ा एडवांटेज रहेगा आपके लिए। दैट्स वो व्हाई आई तो सही है, रिकमेंड यू। दैट्स गुड। हाँ। गुड अप्रोच संजय, आई लाइक द अप्रोच जो आपने फॉलो किया, दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, थैंक नाउ यू। वील हैव सम सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, एंड देन आई विल ओके बी आस्किंग यू रिगार्डिंग बायजूस। ओके, सो माय ओके फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज आप एक सेल्स पर्सन हो, ठीक है, और यस आपकी एक सर। शोरूम है जिसमें आप टॉयज बेचते हो, ठीक है। ओके आपके पास 3 रेंज के टॉय है, 100 रुपए का, 300 रुपए का और 500 रुपए का, ठीक है। ओके सपोज मैं एक कस्टमर हूं, मैं आपके शॉप पे आया, मैंने बोला मुझे एक रिमोट कार चाहिए, तो आपने बोला 3 तरह की है मेरे पास, 100 की है, 300 की और 500 की है। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, 500 वाली पैक कर दो, क्योंकि मेरे बच्चे को ना बड़ी कार पसंद है। मैं छोटी कार पहले ले गया था 100 रुपए वाली, उसे पसंद नहीं आई, उसे 500 वाली पसंद है। आप 500 वाली पैक कर दो, पर आप मुझे कन्विंस करो कि मैं 100 रुपए वाला ही कार खरीदूं आपसे। ओके सर। गो अहेड। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? सी, मैं आपके शॉप से पहले एक कार ले गया था 100 रुपए वाली, सो यस रिमोट सर। कार ले गया था मैं पहले। बट मेरे बच्चे की डिमांड ये है कि उसे बड़ी कार चाहिए, 500 वाली। तो आपने मुझे उस समय यस बताया सर। था कि आपके पास 3 कार है, 100 की है, यस सर। 300 की और 500 की है। बस मुझे 500 वाली यस कार सर। एक पैक कर दो मेरे लिए। ठीक है सर, 500 की तो मैं पैक कर दूंगा सर। लेकिन सर उससे पहले जो अभी 100 रुपये वाली कार आप लेके गए थे ना सर रिसेंटली, वो आपको कैसा लग रहा है सर आपके बच्चे को? सर, कार तो अच्छी है, बट द प्रॉब्लम इज बहुत छोटी है, तो मेरा बच्चा ना उससे मतलब खेल नहीं पा रहा है ठीक से, उसे मजा नहीं आ रहा है खेलने में। ओ तो इट इज वाई थोड़ा सोचा कि अच्छा थोड़ा तो बड़ा आपका कार ले लो उसके लिए, तो अच्छा रहेगा। अच्छा तो उसका छोटा भाई है और नहीं छोटा नहीं, एक बच्चा ही और है बच्चा है उसके मेरा, अलावा? एक ही अच्छा बच्चा है एक ही मेरा। बच्चा है। हम्म। ओके सर ओके। ठीक है सर, बड़ी वाली कार तो हम पैक कर ही देंगे, लेकिन सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटी वाली कार है सर उसका प्राइस ऑलरेडी अभी मतलब डिस्काउंट में चल रहा है सर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको भी ले जाइए सर, बड़ी वाली तो आप ले जा सकते हैं, लेकिन छोटी वाली कार में भी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सर। एंड कि डिस्काउंट तो तो ठीक है, अगर बट मेरे पास एक कार तो है ऑलरेडी छोटी वाली ना, कितनी यस ही सर। लूंगा, एक ही बच्चा है, 2 कार क्या क्या करेगा, है ना। एक यस तो मैं सर। ले ही रहा हूँ 500 यस वाली, सर। एक 100 वाली भी हो गई मेरे पास, 2 कार तो ऑलरेडी हो गई। अब मैं और कितनी कार लूंगा, तो एक ही पैक करो अभी बस। यस सर। सर श्योर सर, मैं कर दूंगा सर पैक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर।
लेकिन सर मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि अभी एक जो कार है ना सर, वो मतलब अभी ओनली आपको न कभी ऑफलाइन सॉरी ना कहीं और ऑफलाइन मिलेगा ना आपको ऑनलाइन मिलेगा सर। मिलेगा तो इसी शॉप में मिलेगा सर। एंड आपको बच्चे को डेफिनेटली वो कार पसंद आया होगा हमारे शॉप से जो लेके गया था, कि हम होममेड है, हमारा खुद का बिजनेस है सर जो मैन्युफैक्चरिंग का, तो अपन खुद से बनाते हैं सर। ये लास्ट पीस बचा हुआ है। एंड इसके अलावा जो 500 वाली वो है वो तो सर आप कभी भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जो अभी वाला है सर यूनिक पीस है, वन पीस है, ये भी बिक जाएगा सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, इसको भी आप आपने ले बोला ना जाइए। आपकी मैन्युफैक्चरिंग, आप फिर बना लोगे कार, मैं फिर ले लूंगा आपसे आगे जाके। नो सर, नो सर। सर अभी क्या चल रहा है अभी सर, जो मतलब जो ए वाली यूनिट है ना सर, इसका जो पार्ट अपन मेनली चाइना से इंपोर्ट करते हैं सर, तो इसका जो पार्ट्स है ना सर वो अब अवेलेबल नहीं हो पाएगा सर। तो इसमें कुछ यूनिक टाइप के पार्ट्स में यूज़ किए गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको भी ले आई जाइए। डोंट थिंक मुझे अगर चाहिए एक होगा, एक तो है मेरे पास ना, अब मैं क्या करूंगा एक्स्ट्रा लेके। तो आपकी बात सही है यस कि सर, आपका लास्ट पीस है, यस बट सर, मैं क्या करूंगा एक्स्ट्रा लेके, मैं कितनी कार रखूंगा अपने सर पास। यस सर, यस सर, यस सर, सही बोल रहे हैं सर। लेकिन अगर आप इसको ऐसा किसी को गिफ्ट में भी देंगे ना सर, तो एक यूनिक रहेगा। आपकी फैमिली में कोई और भी बच्चे होंगे सर, जिसको आप ऑब्वियसली अच्छा मतलब अच्छा समझते होंगे आपको, तो अगर आप उनको भी एक कार गिफ्ट कर देंगे ना सर, तो बच्चे खुश हो जाएंगे। ठीक तो है, इसलिए मैं बोल ओके रहा हूँ आप संजय, इसको ले। गॉट यस योर पॉइंट। ठीक है, नाउ आई विल बी हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज आपकी एक शॉप है जिसमें आप वो बेचते हो, वॉचेस बेचते हो सारी, ठीक है। ओके, सो ओके, आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं वॉच का बहुत शौकीन इंसान हूँ। आई वियर ओके, ब्रांडेड वॉचेस लाइक राडो एंड ऑल, ठीक है। सो वन डे आई कम टू योर शॉप और मैं आपसे बोलता हूँ कि आई एम अ बिजनेसमैन काइंड ऑफ पर्सन, तो मुझे एक वॉच दिखाओ जो 5 लाख की भी होगी तो चलेगा, मेरा बजट 5 लाख तक का है, मुझे दिखाओ। लेकिन आपको मुझे एक घड़ी बेचनी है जो टूटी फूटी हुई है, और बहुत पुरानी घड़ी आपके पास रखी हुई है 19 सेंचुरी की। तो आप मुझे वो घड़ी बेच ओके। के दिखाओ 19 सेंचुरी वाली जो टूटी फूटी है। सर आप वॉच के भी शौकीन है ना? जी। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन, आई जस्ट वांट अ वॉच, आप मुझे एक वॉच दिखाओ, राडो की भी होगी श्योर तो सर। चलेगा। मेरा बजट है 5 लाख रुपए तक का, तो 5 लाख तक मुझे कोई वॉच दिखा तो मैं खरीद लूंगा। ओके सर, ओके सर। बट मैं आपको सर बता हमारे दूं पास पहले, बहुत सारे। स्टार्ट करने से पहले, यस सर। कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैं पार्टीज में जाता हूँ, बिजनेस पार्टीज वगैरह में। तो मुझे एक अच्छी अट्रैक्टिव वॉच दिखाना जो बिजनेस के ओके हिसाब से सर, अच्छी ओके हो। सर। आपको डेफिनेटली पसंद आएगी सर जो मैं आपको वॉच दिखाने वाला हूँ सर। सर ठीक। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप बोल रहे हैं सर, आप 5 लाख का आपका बजट है, तो हम्म। सर उसके अकॉर्डिंग तो आपको बहुत सारी अच्छी वॉचेस तो आराम आराम से मिल जाएंगे सर हमारे शॉप में। आप एकदम सही जगह हैं। हम्म। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, हमारे पास एक यूनिक पीस की वॉच है सर। जैसे कि आप बता रहे हैं कि वॉच की शौकीन है, आपके पास हर कैटेगरी का वॉच होगा सर। लेकिन आपके हम्म। पास क्या ओल्ड वॉच है, 19 सेंचुरी का वॉच है आपके पास? नहीं, आई डोंट हैव। क्यों सर, आपने क्यों नहीं रखा सर फिर? आप इतने वॉच के शौकीन, आपके पास हर तरह का कलेक्शन होना चाहिए सर, नहीं, आपको नहीं कलेक्शन लगता? है, आई अंडरस्टैंड, बट मैं खाली एक्सपेंसिव वॉचेस खरीदता हूँ, पुरानी वॉच में क्या करूंगा, घर पे क्या ही रखना यस है सर। पुरानी वॉच को, यस सर। इसीलिए। दैट्स गुड सर। लेकिन सर जो जो एक टाइम पे जब ओल्ड रहता है ना सर, वो वापस मार्केट में आता है सर सोल्ड बन के। लाइक हम रॉयल इनफील्ड का एग्जांपल ले सकते हैं सर। इससे पहले उसका पुराना वर्जन था, लेकिन वो अभी कितना ट्रेंडिंग में है। सेम लाइक ये वॉच है सर, ये 19 सेंचुरी की है, लेकिन जब एक टाइम आएगा जब इतना हाइप पे रहेगा ना, ये बहुत चलने वाला है सर। अगर और आप ये तो फूटी हुई वॉच है, टूटी फूटी वॉच है यस ये सर, तो। यस सर, इसको इजीली रिपेयर कर सकते हैं सर, इसको कोई इशू नहीं है सर। एक और आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं सर, जो आप 5 लाख का जो वॉच ले रहे हैं सर, अगर आप इसको जो बाइक करोगे, जो आपको पसंद आया है, इसके साथ मैं आपको फ्री दूंगा। 5 लाख तो की आप वॉच क्यों के लेने साथ आप नहीं मुझे चाहोगे फ्री कर सर? दोगे एक वॉच? यस सर, जो 19 सेंचुरी की हो मैं फ्री कर दूंगा आपको। चलो, ओके, परफेक्ट, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। सो अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज आई एम अ पर्सन, आई एम कमिंग टू योर शॉप। आपकी एक शॉप है जिसपे आप बेचते हो, मोटरसाइकिल के पार्ट्स बेचते हो, जैसे कि चेन हो गया, ग्रिप हो गया, ये सब चीजें बेचते हो आप। तो मैं आपकी शॉप पे आया एक ग्रिप खरीदने के लिए, मेरे हैंडल की ग्रिप खरीदने आया था मैं आपकी शॉप पे। बट आप मुझे ओके, एक साइकिल की चेन बेच के दिखाओ जो साइकिल में यूज होती है जनरली। ओके सर। यस। सो हेलो सर। मैंने आपसे आके बोला कि आई वांट अ ग्रिप, मोटरसाइकिल ग्रिप चाहिए मुझे जो हैंडल्स में लगती है, तो मुझे एक ग्रिप दे दो आप। ओके सर, ओके। हेलो सर। हाय। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन। ओके सर। मैं क्या मदद कर सकता हूँ सर आपकी? मुझे एक ग्रिप दिखा दो आप, मोटरसाइकिल वाली जो हैंडल वगैरह पे लगती है। मेरी ग्रिप बहुत पुरानी हो गई है, सो इट इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी। ओके सर, ओके सर। गिफ्ट मैं आपको दिखा दूंगा सर। लेकिन सर आपके यहाँ कोई बच्चा है? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। कोई बच्चा? ओके सर। सर आप बैचलर हैं? जी, बैचलर हूँ। ओके सर, ओके सर। सर आप कॉलेज कॉलेज जाते हैं, स्कूल स्टूडेंट? बट इस सब चीज़ का ग्रिप से क्या मतलब, मुझे ग्रिप खरीदनी है, आप इतनी इंक्वायरी क्यों नहीं कर सर, रहे हो जस्ट मेरे मैं से? यस सर, यस सर, यस सर। तो सर ग्रिप मैं दे दूंगा एक्चुअली। हमारे पास ना सर एक यूनिक टाइप का चेन है सर, जो कि हम्म। काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है।
तो अगर आप साइकिल यूज करते होंगे तो इसमें आप काफी ज्यादा कंफर्ट फील करोगे, इसलिए मैं जस्ट नहीं नहीं, पूछ रहा था कि आप मैं साइकिल यूज नहीं करता हूँ, मैं मोटरसाइकिल यूज करता हूँ। मेरे पास बाइक है अपनी खुद की, मैं वही यूज करता हूँ। ओके मैं अपनी बाइक के लिए ग्रिप खरीद रहा था आपसे। ओके ओके सर। हाँ सर, बाइक की कुछ प्रॉब्लम पुराने वाले ग्रिप में अभी? हाँ, वो थोड़ा सा फट गया, टॉर्न हो गया, तो अच्छा नहीं लगता, देखने वाले को अच्छा नहीं लगता है कि फटी हुई ग्रिप है, तो इसलिए यस मुझे सर, एक यस नई यू आर ग्रिप राइट, चाहिए उसमें। हाँ, यू आर राइट दैट सर। इज इट। सर नया ग्रिप अपन लगवा लेंगे सर, लेकिन जैसे वो तो उसका तो हो जाएगा सर, लेकिन मैं जस्ट आपको एक बताना चाहता हूँ, जो हमारे शॉप में कुछ नया चल रहा है सर, चेन जो आया है नया वाला। तो अगर आप ये, अगर इनकेस अगर आपके पास साइकिल नहीं है, अगर आपकी फैमिली में कोई बच्चा होगा सर, या आपके घर में होगा, जैसे कि आप बाहर रहते हैं, तो अगर वो चेन अगर उसके साइकिल में इंस्टॉल कराओगे ना, तो जैसे स्कूल वगैरह जाता है तो उसको काफी हेल्पफुल रहेगा सर उसके लिए। दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि कोई आप है वो भी नहीं ले मेरे जाइए फैमिली में, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पे। सर। अभी यहाँ घर में अकेले रहते हैं सर, लेकिन आपके सर जहाँ पे सबका होम टाउन है वहाँ तो रहते होंगे ना सर? अच्छा, तो मैं होम तो टाउन तो आपको बाद नहीं? में जाऊंगा ना, अभी टाइम है मेरे को होम टाउन जाने में, बहुत टाइम है। ओके ओके सर। सर इसके अलावा जहाँ पर आप रहते हैं, आपको कोई मतलब ऐसा कोई क्लोज फ्रेंड वगैरह नहीं है नहीं, सर, जिस कोई अगल बगल बच्चा में ऐसा, जो आपको नहीं पसंद हो? नहीं। ओ ओके सर। सर तो आपने सर सर तो आपको नहीं लगता जब आप घर जाओगे तो आप जो जो आपके घर में बच्चे हैं उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए? तो वो साइकिल की चेन थोड़ी गिफ्ट दूंगा मैं उनको, कुछ अच्छी सर गिफ्ट ले यस जाता हूँ, सही हो रहा कपड़े है सर, वगैरह। लेकिन ये सही है सर, लेकिन ये यूनिक टाइप का चैन है ना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। क्या यूनिक है सर इसमें? इसको जब आप उसके मतलब साइकिल में इंस्टॉल करोगे ना, तो उसको जो जो उसमें जो पैडल रहता है ना सर, उसमें काफी कंफर्ट फील होता है। और जो चैन अक्सर सर जो पुरानी साइकिल होती है उसमें जो चैन गिरने का प्रॉब्लम बहुत आता है सर। और जैसे बच्चा सपोज जा रहा है और उसे चेन में प्रॉब्लम आ गई, तो रास्ते में कौन उसको ठीक करने वाला है सर? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब ये वाले चेन इंस्टॉल कराएगा बच्चा, तो काफी उसको स्मूथ फील होगा सर। तो इसकी हम गारंटी देते हैं कि ये कभी खराब होने वाला नहीं है, लॉन्ग लाइफ चलेगा सर। तो ये जब भी ये बच्चा स्कूल जाएगा, इस चेन को लगा यूज करके, तो हमेशा आपको याद करेगा सर कि मेरे को ये भैया ने उस गिफ्ट किया था ऐसा। तो दैट्स मैं आपको बोल परफेक्ट, रहा हूँ। गुड अप्रोच संजय, ठीक है। अब संजय, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज यू आर अ पर्सन वर्किंग इन अ कॉस्मेटिक शोरूम, आप कॉस्मेटिक शोरूम में काम ओके करते हो। सो एक दिन एक ओके सर। लेडी आती है आपके शोरूम में, वो आपसे एक फेस पाउडर लेती है, जो फेस पे लगाते हैं जनरली, ठीक है। ओके आपने एक दे दिया उनको फेस पाउडर, फिर आपने एक्सपायरी डेट चेक नहीं करी उसमें, वो एक्सपायर्ड हो गया था एक्चुअली, आपने चेक ही नहीं किया, आपने उसको हैंड ओवर कर दिया। वो आप पे बहुत ट्रस्ट करती थी, आपकी रेगुलर कस्टमर रही है पहले से, तो उसने लगा लिया वो फेस पाउडर घर जाके, और नेक्स्ट डे पूरा फेस खराब हो गया उनका, पूरा फेस लाल हो गया उनका, बिकॉज पाउडर ने रिएक्शन कर दिया, एक्सपायर्ड था वो, रिएक्शन कर गया। तो नेक्स्ट डे आपकी शॉप पे आई वो, और आपको खूब बोलने लगी कि आप, मैं आप पे ट्रस्ट करती थी इतना, आपने ये क्या किया, मेरा पूरा फेस खराब कर दिया। अब मुझे दो चीज चाहिए आपसे, या तो मुझे कंपनसेशन चाहिए इस चीज का, क्योंकि आपने मेरा फेस खराब किया है, मैं 10 लाख रुपए लूंगी आपसे, अभी के अभी। अदरवाइज मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी कि जानबूझ के आपने ऐसा किया है मेरे साथ। अब आप क्या करोगे? ओके ओके बहुत गुस्से में है वो। सर। यस सर, सर फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो आएगी तो मैं तुरंत उनको सॉरी बोलूंगा। ठीक है, सॉरी चलो मैम, मैं ही वो जो भी आपके कस्टमर साथ हूँ। हुआ। ओके ओके ओके। हाँ, हेलो मैम। हेलो। मैम क्या हुआ मैम, आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, कोई ये प्रॉब्लम हो आपने गई? देखा ना, ये आपने मेरा फेस देखा होगा ना, ये क्या रिएक्शन हो गया, जो आपने कल पाउडर दिया है मेरे को, वो एक्सपायर्ड था, आपने तो चेक नहीं किया वो चीज, मैंने आप पे ट्रस्ट करके ले गया मैं, और मैंने वो लगा लिया फेस पर, और देखो ये पूरा फेस का हाल क्या हो गया है। अब आई वॉन्ट टू थिंग्स, मुझे 10 लाख चाहिए एज अ कंपनसेशन, या मैं आपके अगेंस्ट कोर्ट में केस फाइल कर दूंगी कि जानबूझ के किया आपने ये मेरे साथ। सो सॉरी मैम, ये हमने जानबूझ के नहीं किया है, एक्चुअली हम भी एक इंसान है, गलती तो हो ही जाती है। लेकिन मैम जो भी इसका जो कॉस्ट रहेगा, जो भी इसका खर्चा आएगा, वो मैं पूरा बियर करूंगा मैम। अब कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं, इवन मैं आपके साथ हॉस्पिटल भी जाऊंगा, जब तक आपका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो जाता, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा मैम। एंड मैम जो आप 10 लाख का डिमांड मांग रहे हो ना मैम, ये कोई सोल्यूशन नहीं है मैम उस चीज़ का। मैं तो आपके साथ हूँ ना, मैं तो आपका पूरा मतलब जो भी एक्सपेंसेस है उसको बियर करने वाला हूँ। ओके, ठीक है, बट स्टिल मतलब मेरे को कुछ कंपनसेशन चाहिए इसके अगेंस्ट में। आप बियर करोगे कॉस्ट, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल मुझे कंपनसेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए मुझे कंपनसेशन के रूप में। यस मैम। मैम एक्चुअली जो ये शॉप है उसका ऑनर मैं खुद नहीं हूँ मैम। मैं यहाँ एक नॉर्मल एक काम करने वाला एक एम्प्लॉय हूँ मैम। तो मैम मेरी सैलरी इतनी है नहीं कि मैं आपको पे कर पाऊंगा मैम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। मैं जो भी कॉस्ट होगा आपको डेफिनेटली बियर करूंगा। Okay, perfect, ठीक है संजय। Okay, so now we'll move to the academic questions. Okay, my first question to you is, what is the equation E is equals to mc square? सुना होगा आपने ये इक्वेशन के बारे में। सर यस सर, यस सर। सर किसने दिया इस आइंस्टीन इक्वेशन, और इसमें सर ई आइंस्टीन एम सी क्या क्या है?
आप मुझे ये बताओ। Okay, sir. Sir, it's Einstein law. E is equals to kinetic energy, and m is E is equals to m. Yeah. E, I think kinetic energy, and sir, I did not remember. ठीक है, ओके। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि सन का एक्चुअल कलर क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ सन? White, व्हाइट, ओके। टेल मी द 7 कलर ऑफ रेनबो इन सीक्वेंस। violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. ठीक है। टेल मी द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 8. टेल मी द नेम्स। Sorry, sir. डोंट नो, ओके। Sir, one ठीक है, name. हाँ, टेल मी ना, 8 नेम्स आई वांट, ऑल द नेम्स। No, sir, I don't. You don't know, okay, ठीक है। So my next question to you is, I'll ask some states का नाम बोलूंगा मैं, आप मुझे कैपिटल्स बताना उन स्टेट्स के, ठीक है? Okay. My first question to you is, what is the capital of Madhya Pradesh? Bhopal. What is the capital of Tamil Nadu? Chennai. What is the capital of Andhra Pradesh? I don't. What is the capital of Goa? Panji. What is the capital of Uttar Pradesh? Lucknow. What is the capital of Sikandrabad? I don't know. You don't know, ठीक है, चलो। So my next question to you is, tell me Newton's second law of motion. The rate of change of momentum is directly proportional to the applied force, and Okay. in the we can Got your point, ठीक है। So now we'll move to the section where you are the BDA of Byju's. Consider yourself as a BDA of Byju's, and I'm your customer. You have to convince me with few things, ठीक है? So Okay, sir. I am a kind of customer. I am telling you, आप मेरे घर में एक ऐप बेचने आए Byju's का। मेरा एक Okay. कंसर्न छोटा सा उसमें ये है कि आपके Byju's में you don't have computer science, you don't have social science, you don't have Hindi, you only have science and maths। और मुझे ऐसा ऐप चाहिए जहाँ पे मुझे Okay. सब कुछ मिल जाए, ताकि मेरा बच्चा सब कुछ Okay. पढ़ सके एक बार में। तो मैं आपका बायजूस क्यों खरीदूं? आई डोंट थिंक मुझे बायजूस खरीदना चाहिए, मुझे नहीं खरीदना है Okay. बायजूस। हाउ विल यू कन्विंस Okay. मी? Okay, sir. First of all, hello, sir. हेलो, How are you, sir? आई एम फाइन। How are you, sir? Okay, sir. Okay, sir. तो जैसे कि हमारी बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग मैं आपको काउंसलिंग के लिए आया हूँ सर। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे बच्चा कैसा है सर? बच्चा अच्छा कर रहा है, बट मुझे आपसे एक कंप्लेन है कि आपने मुझे बोला था Okay. कि सब कुछ मिलेगा बायजूस में, पर आपके बायजूस में मैंने चेक किया, सोशल साइंस नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हिंदी नहीं है, कुछ नहीं है। तो क्या फायदा बायजूस लेने का? मुझे नहीं सर लेना है बायजूस। लेकिन यस सर सर लेकिन आपको मैथ साइंस और मैथ से मिल रहे हैं ना सर, तो उसमें तो आप सेटिस्फाइड होंगे। नहीं, वो तो ठीक है, बट मुझे सब कुछ चाहिए ना। अब आप मुझे बताओ, हिंदी के लिए मैं बाहर ट्यूशन रखूंगा मेरे बच्चे का, कंप्यूटर्स के लिए मैं कहाँ जाऊँ फिर ट्यूशन पढ़ाने के लिए? तो मैं कहाँ से पढ़ाऊंगा? पहले आपको फीस दूं, फिर उनको फीस दूं, मैं क्या क्या करता रहूं ऐसे करके? सर तो इसके मुझे लिए नहीं चाहिए इसके लिए बायजूस। सर इसके लिए ऑलरेडी कंपनी में मतलब डिस्कशन चल रहा है सर कि हम अपन बहुत ही जल्दी इसको लाने वाले हैं। जो अभी जो आप बोल रहे हैं ना सर रिसेंट सब्जेक्ट बहुत जल्दी ऐड हो जाएंगे सर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, जो हमारे साइंस और मैथ्स है ना सर वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं सर। अगर बच्चे को इवन अगर आप बच्चे को नीट का प्रिपरेशन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करना है, या उसको IIT देना है सर, ये सभी में मैथ और साइंस ही आता है सर। आपको कहीं से भी सोशल साइंस वगैरह नहीं पूछेगा। सोशल साइंस पूछेगा लेकिन वो जीके का आता है सर, हिंदी का तो कुछ कोई चांस ही नहीं रहता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी बच्चा अगर साइंस और मैथ्स को एकदम बेसिक टू एडवांस सीख जाएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। रही बात आपकी जो सर वो सब जो पुराना सब्जेक्ट है, सॉरी जो सब्जेक्ट आप नहीं है बोल रहे हैं लाइक हिंदी सोशल साइंस, सर तो उसके लिए मैं अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जो प्रोसेस है उसको जल्दी से आगे बढ़ाएं ताकि आपके बच्चे को ठीक है, जल्दी से उसका बेनिफिट मिल जाए। ओके, गॉट योर पॉइंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, सपोज मैं बायजूस खरीदने के लिए रेडी हूँ, मैंने मन बना लिया कि मैं ओके। बायजूस खरीदूंगा आपसे, बट एक जगह मैं यस। आके अटक गया हूँ। आपने बोला बायजूस का कीमत 1 लाख रुपए है, बट आई वॉन्ट टू ओके। गिव 70,000 रुपीज। मैं 70,000 देने को रेडी हूँ। आई विल नॉट गिव मोर देन ओके। दैट, बिकॉज वेदांतु एंड ऑल में थोड़ा प्राइस कम है, एक्स्ट्रा में प्राइस कम है, बट बायजूस में बहुत हाई प्राइस है। मैं 1 लाख तो कभी पे नहीं करूंगा। आई विल ओनली पे 70,000 रुपीज। आपको देना है तो मुझे दो, अदरवाइज मुझे मत बेचो। ये मेरा कंसर्न है। अब मुझे कैसे समझाओगे, कैसे कन्विंस करोगे? ओके सर। हेलो सर। हाय, कैसे हो सर आप? आई एम गुड। बस एक ही चीज है, बायजूस काफी अच्छा एप्लीकेशन है, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, सब अच्छा है, बट पैसे आपके बहुत हाई है। 1 लाख रुपए आप मांग रहे हो मेरे से, मैं 1 लाख पे नहीं कर सकता हूँ। आई कैन ओनली पे 70,000 रुपीज। उतना कर दो मेरे लिए, आप एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, उतना कर दो मेरे लिए, और मैं बायजूस खरीद लूंगा अभी के अभी। मैं पूरा कैश देने को तैयार हूँ आपको, कोई ओके सर। ईएमआई नहीं, ओके कुछ ओके नहीं चाहिए मुझे। सर आप
सर आप पहली बात बायजूस में क्यों जाना चाहते हैं? देखो बायजूस की क्वालिटी अच्छी है, मैंने देखा है, और बायजूस वगैरह काफी नामी भी है, बेसिकली नाम है यस सर, बायजूस का, है ना। वही देख के मुझे बायजूस का इंटरेस्ट आया, और मैंने खुद भी देखे वीडियोस वगैरह, काफी अच्छे हैं, ठीक है, पर प्राइस बहुत हाई है, इतना पैसा मैं कहाँ से पे करूंगा? आई एम मिडिल क्लास यू आर पर्सन, राइट, मैं नहीं पे कर सकता इतना पैसा। यू आर राइट सर। बायजूस बायजूस सबसे अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ा एडटेक कंपनी सर, इसके कंपैरिजन जी में भी कोई नहीं है सर। जी। इवन क्वालिटी के मामले में भी आप देख सकते हैं, और जितने यस। स्टूडेंट इनरोल है उसके अकॉर्डिंग भी आप चेक कर सकते हैं सर। तो बायजूस का भी कोई हम्म। कंपैरिजन ही नहीं है हम्म। सर। तो क्या सर मैं जान सकता हूँ सर आपका ऑक्यूपेशन क्या है? मेरा ऑक्यूपेशन, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। ओके सर, ओके सर। तो सर आप 70,000 देने के लिए रेडी है सर, आपको थर्टी हाँ थाउजेंड उतना मैं डिस्काउंट पे कर चाहिए? सकता हूँ, हाँ 30,000 डिस्काउंट मेरे को कर दो। ओके सर। सर तो आपको क्यों डिस्काउंट चाहिए सर? बिकॉज देखो यार, मेरे और भी खर्चे होते हैं घर पे, मेरा तो जो इनकम है वो तो फिक्स है, और भी खर्चे हैं घर में, राशन के खर्चे हैं, यस बिजली सर। का खर्चा है, बहुत सारे खर्चे हैं, तो मैं सब कुछ मुझे देखना पड़ता है ना। सब कुछ मैं सर आपको दे दूंगा तो मैं यस और सर। क्या देखूंगा फिर अपने लिए, है ना, वो सर इशू है। सर एजुकेशन एक एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है सर, हमको उसका रिटर्न मिलता है। सर आप अपने बच्चे को महंगे महंगे गिफ्ट देते होंगे सर, बर्थडे में उसको गिफ्ट देते होंगे, फेस्टिवल्स में उसको महंगे महंगे क्लॉथ देते होंगे, आप उसको टॉयज देते होंगे, इवन महंगे महंगे। उस टाइम भी अगर आप उसको एक ऐसा चीज़ दें जो उसके लाइफ टाइम तक काम है, तो कितना अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, उसकी कितना लाइफ अच्छा रहेगा सर, उसको हमेशा काम आएगा। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ सर, एक्चुअली हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर, अपन ऐसा डिस्काउंट नहीं दे सकते किसी को, तो दैट्स व्हाई आई थोड़ा एम तो टेलिंग करो यू। मेरे लिए, चलो मैं थोड़ा बढ़ता हूँ, थोड़ा आप घट जाओ, ऐसे करके कर लेते यस हैं, सर। कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं बीच का। ओके सर, मैं 100% इसका ट्राई कर सकता हूँ सर, लेकिन सर फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आप आगे बढ़ने के लिए रेडी है सर, दैट इज़ वेरी गुड सर। लेकिन सर जब आपको इस चीज़ समझ आ रहा है कि बच्चे के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल है, तो आप इसमें डिस्काउंट क्यों चाह रहे हैं सर, जब हमारा कंपनी ऐसा किसी को पॉलिसी प्रोवाइड नहीं करता है सर। अरे मैं और भी लूंगा बायजूस, आगे जाके मैं और भी एक आध साल एक्सटेंड करवा दूंगा बाद में, पर अभी कुछ तो करो, मैं नया कस्टमर हूँ, कुछ तो मेरे लिए कर लो यार डिस्काउंट आप, थोड़ा बहुत तो देख लो जितना यस हो सर। सकता है आपसे। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, 10,000 रुपये, बीस अच्छा। हजार रुपये कुछ तो कम कर दो आप। चलो मैं 80 दे यस सर, देता यस। हूँ, आप 20,000 कम कर दो कम से कम। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बायजूस में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है सर, एंड आप भी ये चीज़ जी मानते हैं कि बायजूस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जी 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 बिल्कुल। एंड आप अपने बच्चे को ग्रो कराना चाहते हैं सर। बिल्कुल। एम आई राइट सर? यस यस। सर। सर ये बच्चा कौन सा क्लास में है? बच्चा अभी क्लास 5 में। ओके सर। सर उसके मार्क्स कितने आते हैं? मार्क्स उसके ठीक आते हैं, 80% तक आ जाते हैं, बट मैंने सुना है कि ओके। बायजूस वगैरह में वीडियो लर्निंग वगैरह होती है, तो उससे बहुत फायदा होता है आगे के भविष्य के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह यस के सर, लिए। तो मेरा आपने वही सही मोटिव है सुना कि वो सर। सीख लाए और आगे जाके उसको अप्लाई करे और लाइफ में अच्छा कर जाए, बस यही चाहता हूँ। सॉरी सर, बच्चे का परसेंटेज आपने कितना बताया? 85%? 80%, 80%, हाँ। 80% सर, लेकिन आप मोस्टली देखोगे सर, जो बच्चे के क्लास होगा उसमें सारे बच्चे के मार्क्स मोर देन 85 रहते हैं सर। जो बच्चे हाँ रहते हैं आते सर, हैं। जब वो छोटे रहते हैं, यस सर, यस सर, की पढ़ाई ईजी रहती है सर उस टाइम। तो सर अगर हम उस टाइम अगर बच्चे के बेसिक्स क्लियर नहीं करेंगे ना सर, तो बाद में हमको दिक्कत हो सकता है। तो हम तो सर इस मामले में मतलब डिस्काउंट एक सही रास्ता नहीं है सर, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी ही नहीं है सर डिस्काउंट देने की। थोड़ा तो फिर आप कर ही दो, सोचिए। थोड़ा तो कर दो आप हम्म, मेरे लिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा बहुत तो मेरे लिए कर दो ओके। आप। ओके सर, सर एक और ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है सर आप पे नहीं कर पाओगे, तो सर हमारे पास एक ईएमआई वाला ऑप्शन है। आप जितना पे करना चाहते हो अभी पे कर देना। नहीं नहीं, देन मैं ईएमआई वगैरह मुझे नहीं चाहिए, मुझे फुल पेमेंट एक बार में ही करना है, वन शॉट में। यस सर, दैट्स गुड सर। लेकिन सर जो ईएमआई वाला ऑप्शन है, हमको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे सर, आपको जो जितना जितना अमाउंट आपको पे करना है आप उतना ही पे करोगे। मुझे ईएमआई समझ में नहीं आती है, मंथली देना वो सब मुझे समझ में नहीं आता, मुझे एक बार में समझ पे कर दो और टेंशन खत्म हो जाएगा, ये मेरे को दिमाग में रहता है। तो मैं नहीं ईएमआई वगैरह चाहता हूँ, कॉस्ट हो नो कॉस्ट ईएमआई हो कुछ भी हो, मुझे नहीं लेना है ईएमआई वगैरह। सर आप लेट से पे कर देना ना, आप थोड़े, जब जैसे कि बच्चे को आपको लग रहा है कि बच्चा अच्छा कर रहा है सर, इवन हमारे पास 15 डेज का ट्रायल पैक भी रहता है सर। अगर सर आप जैसे कि मैं आपको अभी जो आप जितना पैसा दोगे, मैं आपको 15 डेज के लिए ट्रायल दूंगा, जो अपना हमारा जो स्टडी मटेरियल है, जो हमारा टेबलेट मॉड्यूल लर्निंग होता है, आप उस 15 डेज में देख सकते हैं सर बच्चा कितना ग्रो कर रहा है, आप प्रॉपर एनालाइज कर सकते हैं। देन आपको खुद सेटिस्फाइड, आप खुद इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना सर, कि आप हमको ना नहीं कर पाओगे। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। ठीक है, ओके, चलो गॉट योर पॉइंट, सेटिस्फाइड। तो आई विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, ठीक है। सो मेरा नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन ये है कि मान लो मैं एक कस्टमर हूँ और मैं बायजूस खरीद रहा हूँ, बट साथ में एक मेरा रिलेटिव है, वो मेरे घर पे आ जाता है उस टाइम पे, और मुझे बोलता है कि ये बायजूस बेकार है, मत लो, मेरे बच्चे ने लिया है, 1 साल से पढ़ाई कर रहा है, उसके परसेंटेज डाउन हो गए उल्टा, बढ़ने के बजाय। मेरे बच्चे ने हर क्लास करी है बायजूस में, एक क्लास मिस नहीं करी आज तक, पर फिर भी देखो प्रोग्रेस कुछ नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ना लूं बायजूस, कैसे कन्विंस करोगे मुझे? ओके सर। हेलो सर, हाय। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन।
चलो सिचुएशन हो गई ओके और रिलेटिव आ गया, उसने मेरे को बोल दिया, अब मैं आपको मना कर रहा हूँ, मुझे सर। बायजूस नहीं चाहिए, अब कैसे कन्विंस करोगे मुझे आप? ओके सर। सर क्या आपने बायजूस के बारे में इससे पहले कहीं सुना है सर, बायजूस का? मैंने टीवी वगैरह में देखा था, पर ये मेरे रिलेटिव, मेरे क्लोज हम्म, फ्रेंड है, और ये बोल रहे हम्म। हैं इनका बच्चा पहले 80% स्कोर कर रहा था, अब 60 पे आ गया है बायजूस की वजह से। ओ और वो ओ। कह रहा है कि सर उसने क्या मैं रेगुलर क्लास करी है हर बार, पता नहीं फिर भी क्या है, तो मैं बायजूस पे कैसे ट्रस्ट करूँ? मुझे ट्रस्ट ही नहीं है सर बायजूस पे। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ सर? हाँ चलो, मैं ही वो पर्सन हूँ, आप मेरे से बात करो। ओके सर, ओके। हाँ। हेलो मैम, मैं बायजूस एकेडमी काउंसलर हूँ, संजय। जी, मैम, बताइए। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? आपको बायजूस के यार रिगार्डिंग कोई इशू है क्या? मुझे इतना इशू है बायजूस में, बता नहीं सकता हूँ आपको। बिकॉज क्या है कि मेरा बच्चा 80% स्कोर कर रहा था, उसने एक साल ओके। पढ़ाई करी, रेगुलर क्लास करी उसने, पर 60% पे आ गया है वो, बायजूस की वजह से। ओ आई एम सो सॉरी मैम। मैम क्या मैं जान सकता हूँ कोई ऐसा मतलब बच्चा कब पढ़ाई करता है बायजूस का? आप पता क्या नहीं, उसके मैंने साथ में खुद वो रहते रेगुलर हैं? क्लास करता है, क्लास होमवर्क भी करता है, सब कुछ करता है, पता नहीं क्यों मार्क्स कम हो गए उसके। पता नहीं आप लोग क्या पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, मुझे खुद नहीं पता है। मैं तो कभी देखता नहीं उसका पढ़ाई वढ़ाई, वो खुद ही पढ़ते रहता है, सब कुछ होमवर्क होमवर्क करता है। हाँ, क्लास रेगुलर करता है, होमवर्क रेगुलर करता है, इतना मुझे पता है, बाकी मुझे नहीं पता नहीं क्या सिचुएशन। ओके सर। सर डेली स्कूल जाता है और हाँ, स्कूल डेली जाता है। बायजूस पढ़ स्कूल भी जाता है, बायजूस भी पढ़ाई करता है? हाँ हाँ फिर हाँ। इसकी ओके सर। हाँ सर तो सर तो ये बच्चा कहाँ लेकर है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है सर? कोई सब्जेक्ट में मैं स्पेसिफिक नहीं अभी वीक देखता हो रहा हूँ, होगा? मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इस बारे में। ओके 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 सर। अभी रिसेंट बच्चा कौन से क्लास में था? अभी वो 7th क्लास में है। ओके, तो जो उसका जो 6 का मार्क परसेंटेज है वो डाउन हुआ था? हाँ, वो काफी डाउन हो गया, अभी 7th में आया है इस बार, पर वो 60 पे हाँ। आ गया था, 80 या 60 पे आ गया सीधा। ओके 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 सर। हाँ सर, तो सर कोई सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ जैसे मार्क्स कम हो गए उसके? देखो, मैं तो बताऊं आपके, एक तो बायजूस में ये सोशल साइंस वगैरह है नहीं, सब में उस पे खाली हम्म पास हुआ है, वो सोशल साइंस में पास हुआ है, हिंदी में जस्ट पास, कंप्यूटर में जस्ट पास, साइंस वगैरह में 50 लाया है वो 100 में से, और मैथ हम्म। पे 45 मार्क्स आए हैं उसके। ओके सर। तो सब में ही सर खराब किया उसने। ओके 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 सर। सॉरी सर, लेकिन सर जो जो बायजूस का प्रोडक्ट है ना कहीं बच्चा कुछ कहीं ना कहीं लैग कर रहा है सर बच्चा, वो हमको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ बच्चा लैग कर रहा है। उसके लिए मैं बच्चे का एक पर्सनल काउंसलिंग लेना चाहूंगा सर, तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ठीक है, सर, ओके। क्योंकि ठीक है, ओके, सर गॉट योर पॉइंट, मैं समझ गया आप यस क्या बोलना चाहते हो, आप कैसे इसको रिलेट कर रहे हो, मैं समझ गया। गॉट योर पॉइंट। सर। नेक्स्ट क्वेश्चन संजय आपसे ये है कि सपोज मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और मैं आपसे बोलता हूँ ओके। मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे बच्चे को मुझे बस पास करवाना है, दुकान में बैठाना है, ठीक है, मुझे उससे ओके गल्ला संभलवाना है कि बस आप काउंटर पे बैठ जाओ, पैसे गिनो, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। एक ओके ऐसा माइंडसेट का बंदा जिसको बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, कैसे कन्विंस करोगे उसको आप? ओके ओके ओके। जी। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो कैसे हो आप? सर आप? सर मैं बायजू से संजय बात कर रहा हूँ सर, एकेडमिक काउंसलर। बोलिए, क्या बात है? हाँ। सर हमारे सर आपको बच्चा कुछ दिन से हमारा ऐप यूज़ कर रहा था सर, बायजूस का। हाँ, वो बाय मिस्टेक उसने यूज कर लिया, सॉरी उसके लिए। और मुझे बाय यूज नहीं चाहिए, मैं खुद बिजनेसमैन हूँ, मुझे पढ़ाई वढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अभी कब 10th तक पढ़ाई कर ले, फिर वो मेरी दुकान में आके हम्म। बैठेगा, दुकान संभालेगा सर मेरे साथ। लेकिन बच्चा का इंटरेस्ट आ रहा है सर बायजूस में। बच्चा जब ऐप स्टार्ट किया था उसने पूरा 3 घंटे तक यूज़ किया है। देखो, मैं प्रॉपर आपको पजल बताऊं सॉल्व किए एक हैं, क्विज बात, सॉल्व किए हैं। मैं बताऊं यस आपको सर। एक बात, मेरा बहुत बड़ा यस बिजनेस सर। है, मैं करोड़ों का मेरा इनकम है, ठीक है। तो मुझे बिजनेस संभालने के लिए एक तो चाहिए कोई साथ में मेरे, मैं अकेले तो बिजनेस संभाल नहीं पाऊंगा। तो मेरा इतना प्रॉपर्टी का क्या करूंगा मैं? तो उसको संभाल लेने दो, क्या मतलब है पढ़ाई वढ़ाई करके अभी? यस सर, यस सर, यस सर। सर आप किस लेवल के क्लाइंट को डील करते हैं सर? तो क्लाइंट नहीं, आपके हमारा तो क्लाइंट्स? बिजनेस है। बिजनेस में क्या होता है कि भाई लोग आए, हम उनसे बातें बातें करते हैं, सामान बेचते हैं और पैसा लेते हैं उस चीज का, सर बस। मैं जान सकता हूँ सर आप किस कैटेगरी का बिजनेस कर रहे हैं, मैं जान सकता हूँ? हम हार्डवेयर का बिजनेस करते ओके सर, ओके ओके। सर तो हैं। आपको जो जो सामान होता होगा वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता होगा आप? हाँ, एम आई मतलब राइट अलग सर? अलग जगह से आता है, दिल्ली से आता है, इवन कलकत्ता से आता है, इंडिया से ही लेते इवन हैं। आपको इवन अच्छा इंडिया से ही लेते, अदर कंट्री से आप नहीं इंपोर्ट नहीं, करते सर? कंट्री से इंपोर्ट नहीं करते हम, अदर कंट्रीज से। क्यों सर, आपको अदर कंट्री से क्यों इंपोर्ट नहीं करते सर? जरूरत नहीं पड़ती, हमारा पहले टाई अप बना हुआ है सबके साथ, चल रही है, तो मैं कहाँ इंपोर्ट करने जाऊँ, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास, इतना बड़ा यस सर, बिजनेस यस है, सर। क्या क्या देखूं मैं, तो छोड़ दिया है मैंने। ओके सर। सर जैसा कि मैं आपको समझ पा रहा हूँ आप एक बिजनेसमैन है सर, लेकिन सर जी। एजुकेशन बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है सर। अगर बच्चा पढ़ा लिखा रहेगा तभी वो उस बिजनेस को समझ पाएगा, तभी वो अपना वहाँ पास अपना माइंड को वहाँ मतलब लगा पाएगा अच्छे से, तभी वो क्या काम बात कर कर रहे हो पाएगा। सर आप? मैं क्लास 5th फेल हूँ, सच बताऊं तो।
और मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ आज, तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे। आप बोलते हो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, क्या यू इंपॉर्टेंट है आर राइट सर, एजुकेशन? यू आर राइट सर, यू आर राइट सर। आप फिफ्थ फेल है सर, लेकिन सर जो आपने कहीं ना कहीं जो क्लाइंट ले रखे होंगे अपनी कंपनी को काम करने के लिए, वो एक एजुकेटेड होंगे सर। हाँ। एम आई राइट सर? हम्म वो आपके मेन जो इंपॉर्टेंट वर्क हो वही हैंडल करते हैं सर। इसकी हम्म वजह से आपको कहीं ना इसकी वजह से आपको कहीं कभी कभी लॉस भी होता होगा सर, क्योंकि वो हम्म सारी चीज को खुद मेंटेन कर लेते हैं। आपको जो मतलब जो भी एजुकेशनल वाली चीज है वो आप देखते भी नहीं होंगे सर। अगर आप इन करेक्ट। फ्यूचर अगर आप बच्चे को अगर सेम आप अपने जैसा अगर रखते हो तो बच्चे को भी सेम फील होगा सर। अगर क्योंकि सर आजकल जो दुनिया है वो बदल गया सर, काफी ज्यादा एडवांस हो गया है। हर चीज में एजुकेशन इन्वॉल्व रहता है सर। लाइक आप जैसे कि बच्चे को बेसिक अकाउंटिंग ही नहीं आएगा तो बच्चा कैसे कैलकुलेट पाएगा कर पाएगा कैसे कैलकुलेशन कर पाएगा कि हमारा इतना बिजनेस है इतना। एंड सपोज सर आप अभी इंडिया लेवल पे डील करते हैं सर, बच्चा चाहेगा कि मैं अपने पापा का बिजनेस और ज्यादा ग्रो करूँ, तो वो सोचेगा कि मैं इंटरनेशनली लेके जाऊंगा बिजनेस को। तो चाहेगा कि मैं बाहर से इंपोर्ट करूँ, बाहर में इंपोर्ट करूँ, बाहर से एक्सपोर्ट भी करूँ मैं। तो इसलिए सर उसको कहीं ना कहीं डील करना पड़ेगा इंटरनेशनल क्लाइंट से सर। इसके लिए इंग्लिश बहुत जरूरी होती है। तो परफेक्ट क्या आप नहीं संजय, चाहोगे सर आपके बच्चे? गॉट योर पॉइंट। ठीक है, मैं समझ गया आप ये समझाना चाह रहे हो मेरे को। यस नाउ टेल मी संजय, व्हाट सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम बायजूस? सर, एज पर द कंपनी नॉर्म्स आई विल कुछ एक्सपेक्ट। आपकी प्रायोरिटी हो, कुछ तो होगा कि इतना चाहिए मुझे, समथिंग, नो कोई सर, फिगर माइंड में होगा? नो सर, नो सर, नहीं है, ठीक है। नो ओके, सर। बायजूस में संजय बॉन्ड भी होता है हमारा हमारा बीडीएस के साथ, ठीक है? तो इफ यू जॉइन बायजूस डेफिनेटली यू विल हैव टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 3 years एट लीस्ट। आर यू ओके विद साइनिंग अ यस सर, बॉन्ड? यस सर। सर आई एम पैशनेट अबाउट दिस सेल्स सर, सो आई डोंट हैव एनी इशू, आई कैन साइन। बट द प्रॉब्लम इज, अगर आपने बॉन्ड ब्रेक किया इन बिटवीन, तो यू विल हैव टू पे 10 लाख रुपीस एज अ कंपनसेशन अमाउंट टू बायजूस। आर यू ओके विद इट? यस सर, यस सर, यू कैन ट्रस्ट मी सर, आई एम 100%। ओके, ठीक है। आई एम गिविंग यू 3 थिंग्स: मनी, वर्क लाइफ बैलेंस एंड करियर ग्रोथ। यू हैव टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। मनी, करियर ग्रोथ एंड वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है। संजय, हु इज योर बिगेस्ट मोटिवेशन, लाइक अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली? फैमिली को छोड़ देते हैं एक बार, तो हु इज योर यस बिगेस्ट सर। मोटिवेशन इस पूरे वर्ल्ड में? सो विवेक बिंद्रा। विवेक विवेक बिंद्रा बिंद्रा भाई। सर, आई थिंक वो एक सर आई थिंक विवेक बिंद्रा इज अ ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी वेयर वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग from his, and I regularly watch their videos, and I really feel motivated, and they already tell good points. They already tell something about the sales. That's points are really I really like that. ओके, परफेक्ट, So ठीक है संजय, गॉट योर पॉइंट। संजय, आई थिंक द इंटरव्यू इज डन हियर एंड नाउ वील हेड टू आवर फीडबैक सेशन ऑफ द सेशन। ओके okay sir, okay sir. गाइस, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, सो दैट आपके लिए हम फ्यूचर में भी ऐसे इनोवेटिव वीडियोस लाते रहे, सो दैट यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम ऑल दीज वीडियो। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।